دہلی اسکول اور دہلی اسکول کی خصوصیات کے بارے میں آپ سے روبرو جو ہے ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا ہی اہم ہے، اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ موضوع، دہلی اسکول اور اس کی خصوصیات۔ دہلی جب تباہ و برباد ہونے لگی، نادر شاہ کے جب حملے ہونے لگے، میر تقی میر، سودا اور درد کا جب دور تھا، تو اس وقت دہلی پر جو حملات ہو رہے تھے اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شاعری پر کس طرح اثر ہوا اس چیز کا، اور شاعری پر جو اثر ہے وہ اس دور کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم اس دور کی جب شاعری دیکھتے ہیں تو اس دور کی شاعری میں سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے میر تقی میر ہے۔ میر نے اپنی شاعری میں دہلی اور دل کا مرثیہ جو ہے اجاگر کیا ہے۔ میر ایک جگہ کہتے ہیں، ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب کہ صاحب ہم نے درد اور اتنے کیے جمع کے دیوان ہوا۔ میر نے دل اور دلی کا مرثیہ اپنی شاعری میں پوری طرح گھیر دیا ہے، پوری طرح سے انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ سوز و گداز وہاں کے درد کی شاعری میں بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن درد کی شاعری میں ہمیں تصوف زیادہ طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تصوف کے اگر سب سے بڑے کوئی شاعر ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جو ہیں خواجہ میر بندی ہیں۔ درد کہتے ہیں، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جب بانی تعالیٰ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جگ میں آیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ بانی تعالیٰ کا جو نور ہے، اس کا جو جلوہ ہے، ہمیں اس قدرت کی ہر شے میں دکھتا ہے، ہمیں ہر ذرے ذرے میں دکھتا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہر شے میں خدا موجود ہے۔ خواجہ میر درد کے ساتھ ہی اسی دور میں سودا بھی گزرے ہیں۔ سودا نے بھی لطف بیان، سادگی اور روانی اور قصیدے میں ان کی مہارت حاصل ہے، لیکن سودا نے کچھ غزلیات بھی کہی ہیں۔ ان کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، بڑا ہی حسین شعر ہے وہ کہتے ہیں، ٹوٹے تیری نگاہ سے اگر دل حباب کا، ٹوٹے تیری نگاہ سے اگر دل حباب کا، پانی بھی پھر پیے تو مزہ ہے شراب کا۔ سودا کے مزاج میں سرمستی اور رنگینی موجود تھی۔ وہ ہراس نہیں ہوتے تھے، وہ کسی طرح سے پریشان نہیں ہوتے تھے، وہ ہر ماحول میں جو ہے اپنے آپ کو خوش مزاج رکھتے تھے۔ ان کے خوش مزاجی کا عکس ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ قصیدہ گوئی کو انہوں نے آسمان تک پہنچا دیا، اور وہاں تک آج قصیدہ گوئی میں کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔ دہلی کی شاعری میں ہمیں تشبیہات اور اشتہارات کی لذت بھی ہمیں ملتی ہے۔ ہم تصوف کا اگر ذکر کریں، تشبیہات کا ذکر کریں، سادگی کا ذکر کریں، سوز و گداز کا ذکر کریں، غم و ہراس کا اگر ذکر کریں، تو وہ ساری چیزیں ہمیں دہلی اسکول کی شاعری میں ملتی ہے۔ کئی جگہ یہ کہا جاتا ہے، اور یہ خوب ثبوت بھی ہے اس بات کا شاعری وہاں کی، کہ دہلی کی شاعری میں آہ ہے اور لکھنؤ کی شاعری میں واہ ہے۔ لکھنؤ کا ماحول اس سے بالکل پرے تھا، بالکل تضاد تھا وہاں کا ماحول۔ وہاں پر سرمستی اور رنگینی بہت تھی، وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی تھی، اور دہلی میں بہت ہی حملے ہوتے تھے۔ ہندوستان کا تخت گاہ اور ہندوستان کا مرکز تھا، جو بھی آتا یہاں پر پہلے حملے ہوتے تھے۔ اس سے دہلی درہم برہم ہو جاتی تھی، لوگ سکونت اختیار کرنے کے لیے دکن کی طرف رخ کرتے تھے، اور بعد میں جب دہلی تباہ ہوئی تو لکھنؤ کی طرف رخ ہوا۔ اس سے ایک نئے اسکول کی بنیاد پڑی، وہ ہے لکھنؤ اسکول۔ دہلی کی شاعری میں آہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے۔ میر ایک جگہ کہتے ہیں، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا، نادان دل سے پھر بلایا نہ جائے گا۔ میر اپنے دور کی دہلی کو یاد کرتے ہوئے اپنی شاعری میں لکھتے ہیں کہ اس کی یاد اتنی خوب نہیں ہے، اس کی یاد سے باز آئے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ منظر ہم نے دیکھ لیا، یا ہم نے اس منظر کو واپس سے خیالوں میں ہمارے آ گیا وہ منظر، تو ہمیں بلایا نہ جائے گا۔ اتنی تکلیف، اتنے درد و غم میں وہ شاعری لکھ رہے تھے۔ ان کی شاعری کا دور جو ہے سنہرا دور کہلاتا ہے اردو شاعری کا، میر، سودا اور درد کا۔ اس کے بعد دہلی پھر سے آراستہ ہونے لگی، اور غالب، مومن، ذوق جیسے شاعر جو ہے وہاں پر شعراء پیدا ہوئے۔ غالب نے اپنا ایک الگ ہی انداز نکالا۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں، کوہ طور کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو وہ چیلنج کرتے ہیں غالب۔ ایک جگہ کہتے ہیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک
आओ ना हम भी सैर करें कोए तूर की। गालिब का अंदाज आप देखिए यहाँ पर, वो कहते हैं अल्फाज से ज़्यादा ख्यालात की सफाई है वहाँ पर। उनके ख्यालातों में ये बात वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब मिला, ज़रूरी नहीं कि हमें भी वही जवाब मिले। हम क्या, हमें शायद अलग जवाब मिल सकता है, तो हम चलते हैं, हम भी कोई तुर्की से करते हैं। मोमिन इश्किया शायरी के बड़े माहिर थे, बड़े नौशनास थे, और उनकी शायरी भी बड़ी ही इश्क और शौकी और अमीरी से भरी हुई उनकी शायरी। वो एक जगह कहते हैं, गैरों के खुल न जाए कहीं राज देखना, अपनी महबूब को कहते हैं। उन्होंने कई जगह अपनी महबूब का जो है वो नाम भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। गैरों के खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम से रोमांस देखना। मोमिन और ज़ौक़ ने, अगर सौदा के बाद आसमान या कसीदे पर किसी का नाम आता है तो दो दर्जे में जो शायर हैं वो हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ ने सौदा निगारी में बड़ा ही कमाल किया है। ज़ौक़ के यहाँ बड़े चुस्त और दुरुस्त अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सौदा से वो आज भी कुछ पीछे ही हैं। तो हमारे यहाँ दो चमकते हुए सितारे हैं कसीदा निगारी में, सौदा, और सफ़े अव्वल पर सौदा है, और दूसरे नंबर पर अगर हम रखना चाहें तो ज़ौक़ है। इसी तरह से मीर अनीस मरसिया निगारी में हमारे यहाँ पर सफ़े अव्वल है, और मीर बबर अली अनीस के बाद अगर हम कोई नाम देखें तो मिर्ज़ा कबीर का आता है। और गज़ल में तो आप गज़ल के शहंशाह आप जानते हैं मीर तकी मीर है। सबसे पहले वली जब दक्कन से आए, उससे पहले वो दिल्ली में उर्दू को गिरी पड़ी ज़बान समझा जाता था, लेकिन वली 1700 में यहाँ पर सफ़र किया, शाह और गुलशन के कहने पर उन्होंने शायरी लिखी। तो 1720 में उनका दीवान जब मंजर यहाँ पर आया तो दिल्ली और दिल्ली वालों की निगाहें उर्दू की तरफ उठी, और वहाँ से उर्दू में बेहतरीन अदब तख्लीक किया जाने लगा। और आज हर जगह आप देख लीजिए उर्दू का बोलबाला है। अगर फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, गीत गाने की बात करें हम, या किसी भी बड़े प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो उर्दू के बिना कोई चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसी सिलसिले में हम इसका सेकंड पार्ट जिसमें है तरक्की पसंद तहरीक से लेकर अलीगढ़ तक, हम दिल्ली स्कूल और दिल्ली स्कूल की खुसूसियात के बारे में आपसे रूबरू जो है हुए हैं। आज का मौजू जो है बड़ा ही अहम है, उर्दू अदब में एक संग मील की हैसियत रखता है ये मौजू, दिल्ली स्कूल और उसकी खुसूसियात। दिल्ली जब तबाह बर्बाद होने लगी, नादिर शाह के जब हमले होने लगे, मीर तकी मीर, सौदा और दर्द का जब दौर था, तो उस वक्त दिल्ली पर जो हमलात हो रहे थे उससे आपको मालूम होगा कि शायरी पर किस तरह असर हुआ इस चीज़ का। और शायरी पर जो असर है वो उस दौर की तर्जुमानी करता है। हम उस दौर की जब शायरी देखते हैं तो उस दौर की शायरी में सौदाज पाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मीर तकी मीर है। मीर ने अपनी शायरी में दिल्ली और दिल का मरसिया जो है उजागर किया है। मीर एक जगह कहते हैं, हमको शायर न कहो मीर कि साहब हमने, हमको शायर न कहो मीर कि साहब हमने, दर्द और इतने किए जमा के दीवान हुआ। मीर ने दिल और दिल्ली का मरसिया अपनी शायरी में पूरी तरह घेर दिया है, पूरी तरह से उन्होंने बयान कर दिया है। सोचो गुलास वहाँ के दर्द की शायरी में भी हमें मिलता है, लेकिन दर्द की शायरी में हमें तसव्वुफ़ ज़्यादा तौर पर देखने को मिलता है। तसव्वुफ़ के अगर सबसे बड़े कोई शायर हैं तो वो हमारे साथ जो हैं ख्वाजा मीर दर्द हैं। दर्द कहते हैं, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। जब बारी ताला के लिए वो कहते हैं कि मैं जग में आया, मैंने इधर उधर देखा, तो तू ही आया नजर जिधर देखा। क्यों? क्योंकि बारी ताला का जो नूर है, उसका जो जलवा है, हमें इस कुदरत की हर शय में दिखता है, हमें हर जगह जगह में दिखता है। वही बात है कि हर शय में खुदा मौजूद है। ख्वाजा मीर दर्द के साथ ही इसी दौर में सौदा भी गुजरे हैं। सौदा ने भी लुत्फ़ बयान, सादगी और रवानी और कसीदे में उनकी महारत हासिल है, लेकिन सौदा ने कुछ गज़लियात भी कही हैं। उनका एक शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी, बड़ा ही हसीन शेर है वो कहते हैं, टूटे तेरी निगाह से अगर दिल हुबाब का, टूटे तेरी निगाह से अगर दिल हुबाब का, पानी भी फिर पिए तो मज़ा है शराब का। सौदा के मिजाज में
सरमस्ती और रंगीनी मौजूद थी, वो हिरास नहीं होते थे, वो किसी तरह से परेशान नहीं होते थे, वो हर माहौल में जो है अपने आप को खुश मिजाज रखते थे। उनके खुश मिजाजी का अक्स उनकी शायरी में हमें देखने को मिलता है। कसीदा कोयल को उन्होंने आसमान तक पहुंचा दिया और वहाँ तक आज कसीदा कोयल में कोई नहीं पहुंच पाया है। दिल्ली की शायरी में हमें तशबीहात और इश्तिहाद की लज़्ज़त भी हमें मिलती है। हम तसव्वुफ़ का अगर जिक्र करें, तशबीहात का जिक्र करें, सादगी का जिक्र करें, सोज़-ओ-गुदास का जिक्र करें, हिरास का अगर जिक्र करें, तो वो सारी चीज़ें हमें दिल्ली की स्कूल की शायरी में मिलती है। कई जगह ये कहा जाता है और ये खूब सबूत भी है इस बात का शायरी वहाँ की कि दिल्ली की शायरी में आह है और लखनऊ की शायरी में वाह है। लखनऊ का माहौल इससे बिल्कुल परे था, बिल्कुल तेजाब था वहाँ का माहौल। वहाँ पर सरमस्ती और रंगीनी बहुत थी, वहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी थी और दिल्ली में बहुत ही हमले होते थे। हिंदुस्तान का तख्तगाह और हिंदुस्तान का मरकज़ था, जो भी आता यहाँ पर पहले हमले होते थे। उससे दिल्ली दरहम बरहम हो जाती थी। लोग सुकूनत इख्तियार करने के लिए दक्कन की तरफ रुख करते थे और बाद में जब दिल्ली तबाह हुई तो लखनऊ की तरफ रुख हुआ। उससे एक नए स्कूल की बुनियाद पड़ी, वो है लखनऊ स्कूल। दिल्ली की शायरी में आहा है, ये मैंने आपको बताया ही है। मीर एक जगह कहते हैं याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीर बाजा, नादान दिल से फिर बुलाया न जाएगा। मीर अपने दौर की दिल्ली को याद करते हुए अपनी शायरी में लिखते हैं कि उसकी याद इतनी खूब नहीं है, उसकी याद से बाज आए हम। क्यों? क्योंकि अगर वो मंजर हमने देख लिया या हमने उस मंजर को वापस से ख्यालों में हमारे आ गया वो मंजर, तो हमें बुलाया ना जाएगा। इतनी तकलीफ, इतने दर्द और गम में वो शायरी लिख रहे थे। उनकी शायरी का दौर जो है सुनहरा दौर कहलाता है उर्दू शायरी का, मीर सौदा और दर्द का। इसके बाद दिल्ली फिर से आस्था होने लगी और गालिब, मोमिन, ज़ौक़ जैसे शायर जो है वहाँ पर शोरा पैदा हुए। गालिब ने अपना एक अलग ही अंदाज निकाला। वो एक जगह फरमाते हैं, कोहे तूर को भी मूसा अलैहिस्सलाम की बात को वो चैलेंज करते हैं गालिब। एक जगह कहते हैं क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। गालिब का अंदाज आप देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं अल्फाज से ज़्यादा ख्यालात की सफाई है वहाँ पर। उनके ख्यालातों में ये बात वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब मिला, ज़रूरी नहीं कि हमें भी वही जवाब मिले। हम क्या, हमें शायद अलग जवाब मिल सकता है, तो हम चलते हैं, हम भी कोहे तूर की सैर करते हैं। मोमिन इश्किया शायरी के बड़े माहिर थे, बड़े नौशनास थे और उनकी शायरी भी बड़ी ही इश्क और शौकी और रंगीनी से भरी हुई उनकी शायरी। वो एक जगह कहते हैं गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, अपनी महबूब को कहते हैं। उन्होंने कई जगह अपनी महबूब का जो है वो नाम भी उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गम है नमाज दे देना। मोमिन और ज़ौक़ ने अगर सौदा के बाद आसमान या कसीदे पर किसी का नाम आता है तो दो दर्जे में जो शायर हैं वो हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ ने सौदा निगारी में बड़ा ही कमाल किया है। ज़ौक़ के यहाँ बड़े चुस्त और दुरुस्त अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन सौदा से वो आज भी कुछ पीछे ही हैं। तो हमारे यहाँ दो चमकते हुए सितारे हैं कसीदा निगारी में, सौदा और सफ़े अव्वल पर सौदा है और दूसरे नंबर पर अगर हम रखना चाहें तो ज़ौक़ है। इसी तरह से मीर अनीस मरसिया निगारी में हमारे यहाँ पर सफ़े अव्वल है और मीर बबर अली अनीस के बाद अगर हम कोई नाम देखें तो मिर्ज़ा तबीर का आता है। और गज़ल में तो आप गज़ल के शहंशाह आप जानते हैं मीर तकी मीर है। सबसे पहले वली जब दक्कन से आए उससे पहले वो दिल्ली में उर्दू को गिरी पड़ी ज़बान समझा जाता था, लेकिन वली 1700 में यहाँ पर सफ़र किया और शाह और गुलशन के कहने पर उन्होंने शायरी लिखी। तो 1720 में उनका दीवान के मंजर यहाँ पर आया तो दिल्ली और दिल्ली वालों की निगाहें उर्दू की तरफ उठी और वहाँ से
اسی سلسلے